what are the various steps of starting a small business. Okay, so we will complete this topic, and then we'll see that what kind of business organization concepts are there, means what kind of business form of business organization we can opt, right? So I guess you all have idea about sole proprietorship, LLC, limited liability company, joint stock, सबके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, right? So we'll complete about 1-2 points in that. And but before that, I just want to know that what is the industrial life cycle? Who is going to tell me about it? Raise your hand. Life cycle, ma'am. Tell me about industrial life cycle. Yes, Sonam. Ma'am, introduction stage, growth stage, checkout, maturity, decline stage. In introduction stage, innovation is high, high focus on distribution channel, large in marketing. Ma'am, niche market इसमें focus करते हैं हम लोग. Product are different from others, and early adopters. That customer are purchased because they are adopters. Use latest technology. Next, ma'am, growth, revenue increase in product. They purchase again and again if quality is good. People are aware about the product and not find difficulty about other products. मैम सेल्स रेट इंक्रीज होता है, मार्केट शेयर ग्रोथ इंक्रीज होता है, और इनोवेशन मैम एग्जिस्टिंग करते ताकि और बेटर से बेटर हो सके. और इसमें मतलब अपना लीडर एक मतलब वन टू लीडर हो जाता है मैम मार्केट में प्रोडक्ट और सर्विस को लेकर के. और थर्ड होता है मैम सेकआउट. मैम स्ट्रॉन्ग फर्म स्टार्ट टू गेन मोर मार्केट शेयर, स्ट्रॉन्ग innovation, product quality, marketing, customer support, after sales and service, and competition increase होता है मैम companies youth marketing and pricing technique. Then मैम fourth maturity. मैम ये peak point है जहाँ maximum mass market हो जाता है मैम. यहाँ strong firm रहते हैं, increase market share होता है, market position रहता है, और कंज्यूमर मतलब प्रोडक्ट के बारे में और मैक्सिमम अवेयर हो जाते हैं, और प्रोडक्ट को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मतलब क्या कौन सा ब्रांड उनको लेना है, कौन सा प्रोडक्ट लेना है. मैक्सिमम सेल्स ग्रोथ रहता है और कॉम्पिटिटर्स यहाँ हाई रहते हैं. देन मैम डिक्लाइन स्टेज. यहाँ सेल्स नंबर ड्रॉप हो जाते हैं क्योंकि न्यू प्रोडक्ट होते हैं, कॉम्पिटिटर जाते हैं, और ये बेसिकली ट्रेडिशनल थिंग्स पर बेस्ड रहते हैं, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते. एग्जांपल नोकिया. रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ चेंज हो जाते हैं, रॉ मटेरियल में इश्यू. ये इसके रीजंस है, मतलब डिक्लाइन होने के रीजंस क्या क्या होते हैं. हाँ, कि जब you are not basically upgraded according to the technology and you can't able to determine the taste, changing the taste of customers and customers' taste and preferences. If the customer taste and preferences are changed, what we need to do, basically we need to provide or we need to adapt and modify the product, right? And if the company is not able to do so, maybe in the later period, maybe there will be a reach decline stage. Okay. Okay. Very good. Next, Sonam, batch 2, roll number 30. Yes, ma'am. बताइए बेटा. बताइए बेटा. Everything from line stage. Introduction stage. In introduction stage, innovation in product is very high. Be highly focused on distribution channels. Large investment in market, to promote aggressive advertisement to establish awareness. Market scope is to capture the small market, which is to move towards the niche marketing. Optimal strategy focuses on the differentiation, like product must be different from other product in the market. Customer segment should be its early adopter and pioneer. Must be master technology. That is the best strategy which we need for this stage.
And in terms of surprise strategy, we use a single particular market. Then there is growth stage, in which product demand increases, early adopter, repeat purchaser, and mouth publisher as well. And because of the aggressive advertisement, the product will be known to the consumer. Sales rate increase. Innovation is in the existing product to make it better. Revenue will be increased. Market scope will be increased, that is mass marketing. Optimal strategy will be differential. Organizational goal is to be leader in the market. Best strategy is customized product and craftsmanship, which is the add-on qualities. And then there is a checkout stage. It is when the firm faces competition. Strong firms start to gain more market share. Competition increase and company use marketing and pricing techniques. There will be strong innovation. Marketing, after sales services is needed to increase the sales. Then we move on to the maturity stage, where consumer awareness is maximum. Maximum sales and growth. Market scope is basically depends upon the mass marketing. Optimal strategy will be cost, and there we use the imitations. Goal is to increase market share. Suppress strategy is based on the single particular product. And in this stage, gradually the consumer will move to what other brand and industry if they find the best option. So many competitors are already introduced into the market. Entered in the market, yes. Introduce their product in the market, yes. Yes, ma'am. Or in decline stage, sales number will be dropped. New alternative product might get introduced into the market. Competitors will increase. Because we use the traditional technique in this stage. And the main focus in this stage is to survive somehow. And responses by the company in this stage is shut down, enter with product or better product, or merge with the product. Okay, good. 2004-5, but after some time, because so many competitors enter in the market, their market size was declining, and then again they come with motto, with a new theme, and they introduced mobile in the market. So if you're yes beta, मैम मोटोरोला ने मैम अब हम आगे बढ़ते हैं. एंड व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स फॉर स्मॉल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, लॉन्च करने के लिए, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स, तो उसको हम करेंगे. उससे पहले, so what are the various steps for starting the small business? As we all know that कोई भी business को शुरू करना, that is a complex task, right? We cannot, this is not the everyone's cup of tea. यानी हर एक लोग business को शुरू कर दे, बहुत मतलब जरूरी नहीं है, और ये सबके बस की बात भी नहीं होती है, ठीक है. It will take the long time, investment, effort. तो इसकी वजह से यहाँ पर बेसिकली बिजनेस में एंटर करना एक स्ट्रैटेजिक प्लान की तरह होता है. मतलब आपको हर चीज के लिए प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी, हर एक पॉलिसीज, लीगल कंप्लायंसेस को फुलफिल करना पड़ेगा, एंड देन आफ्टर यू विल स्टार्ट सम एनी स्मॉल बिजनेस, राइट. सो देयर आर सम वेरियस स्टेप्स फॉर स्टार्टिंग और लॉन्चिंग द स्मॉल बिजनेस. व्हाट आर द 10 स्टेप्स फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस? सबसे पहली बात, आप जो है यू विल थिंक अबाउट द ओनरशिप, यानी कि आप कौन टाइप के बिजनेस को शुरू करना चाह रहे हो. क्या आप सोल प्रोप्राइटर हो, या फिर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, आपने कोई कंपनी को शुरू किया है. So there are various type of business organization, right? But in the first step, सबसे पहले क्या चीज हम देखेंगे, that is about the business plan. That is about the business plan, or we can say that we have research on the different ideas. What kind of business, what kind of objective you want in your new company? कौन किस तरीके के objectives होने चाहिए, goals होने चाहिए, mission vision क्या है आपकी कंपनी का. First you need to plan about all these things, right?
आप लोग को आइडिया होगा स्मॉल बिजनेस का, ठीक है, लेकिन सिर्फ स्मॉल बिजनेस का आइडिया से काम नहीं चलेगा, आपको गोल भी सेट करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ साथ में यू जस्ट नीड टू थिंक अबाउट सो मेनी थिंग्स लाइक व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस, कौन ऑडियंस होंगे आपके, ठीक है, जो प्रोडक्ट सर्विसेज को यूज करेंगे, आपके ऑडियंस यानी मार्केट स्केल कितना होना चाहिए, ठीक है, डेमोग्राफिक सिचुएशंस और बाकी फैक्टर्स, सेगमेंटेशन, ठीक है, इनकम लेवल, बहुत सारी चीजों के बारे में, बहुत सारे एम्प्लॉइज कौन कौन से एम्प्लॉइज होंगे। तो फर्स्ट वी नीड टू सेट अप विद व्हाट इज द आवर बिजनेस प्लान, यानी हमारा बिजनेस प्लान क्या है, हमारा आइडिया क्या है बिजनेस को स्टार्ट करने का, न्यू कंपनी का गोल क्या होना चाहिए, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। हाउ वी विल अकॉम्प्लिश द गोल, वो लॉन्ग टर्म गोल को हम कैसे अकॉम्प्लिश करेंगे, तो ये आपका पहला होगा बिजनेस प्लान में, ठीक है। सो बिजनेस प्लान आई डोंट थिंक सो आप लोग को लिखना है, बुक है बिजनेस प्लान में लिखिए, बिजनेस प्लान में that we just need to think about what business plan, ठीक है, we just need to use the strategic planning, ठीक है, strategic planning करेंगे about the market, about the employees, about the idea, ठीक है, employees, market, idea, product, services, goal, ठीक है, हमारा गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या हो सकता है, ठीक है, what kind of objectives, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे हमारी कंपनी के, क्लियर हो गया। तो ये सारे आपका फर्स्ट पॉइंट में आ जाएगा, बिजनेस प्लान, वी जस्ट नीड टू थिंक अबाउट मेक द बिजनेस प्लान रिगार्डिंग टू व्हाट, अबाउट द मार्केट, गोल, ऑब्जेक्टिव, मिशन, विजन, एम्प्लॉयज, टारगेट कस्टमर्स, ऑडियंस, ये सबसे पहला बिजनेस प्लान में ये होगा आपका, ठीक है। आइडियाज, यू ऑल्सो नीड टू ऐड आइडियाज, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया आपका, ठीक है, बिजनेस प्लान, राइट, वी जस्ट नीड टू थिंक अबाउट द बिजनेस प्लान। नेक्स्ट 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 obtain startup capital, यानी कि if we will consider one business, हमने कोई भी बिजनेस के बारे में सोचा, अब हमें कैपिटल कहां से मिलेगा, मतलब स्टार्टअप कैपिटल, इट मींस दैट द इनिशियल कैपिटल, और वी कैन से द स्टार्टिंग में जो कैपिटल लगता है आपके, अमाउंट जो आपका इन्वेस्ट होगा स्टार्टिंग में बिजनेस को शुरू करने में, सो व्हाट आर दूज अमाउंट, वेयर फ्रॉम वेयर विल गेट दैट, ठीक है। सो इसमें हम लिखेंगे सेकेंड जो होगा, राइट अ बिजनेस प्लान में आप लोगों ने कुछ कुछ पॉइंट्स लिख लिया है ना सबने, बिजनेस प्लान में आप चीजों को लिख सकते हो। विजन, विजन में क्या होता है, डिस्क्राइब योर बिजनेस कंसेप्ट, विजन में लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट डिस्क्राइब योर बिजनेस कंसेप्ट, आपका बिजनेस कंसेप्ट क्या है, यू कैन राइट अबाउट इट। डिटेल द टाइप्स ऑफ बिजनेस यू आर बिल्डिंग, यानी कौन सा बिजनेस आप शुरू कर रहे हो उसके बारे में लिखिए, ठीक है। हाउ यू वांट टू ग्रो इन द नेक्स्ट 5-6 years, सारे चीजें विजन में आएंगे। विजन में क्या होगा, इन दिस सेक्शन इट डिस्क्राइब अबाउट द फ्यूचर बिजनेस कंसेप्ट, लिखिए, कह सकते हैं कि बिजनेस का ब्लूप्रिंट है। विजन में क्या क्या चीजें आएंगी, इट डिस्क्राइब अबाउट योर बिजनेस कंसेप्ट, विजन में डिस्क्राइब अबाउट योर बिजनेस कंसेप्ट, डिस्क्राइब अबाउट योर बिजनेस कंसेप्ट एंड प्लान्स फॉर द फ्यूचर, ठीक है। विजन में हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर वही मैंने बताया था, विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव्स, यही सब बिजनेस प्लान में लिखेंगे। तो सबसे पहले विजन में क्या होगा, डिस्क्राइब योर बिजनेस कंसेप्ट, यानी आपके बिजनेस का कंसेप्ट क्या है, डिस्क्राइब अबाउट योर बिजनेस कंसेप्ट and plans for the future, and plans for the future means in future what kind of things you are going to do in your business. So what you need to write, describe your business concept as well as plan for the future. Second point, इसमें आगे लिखिए, you can also write, you can also mention what type of business you are building in vision. Vision में you can write that what kind of business you are building, you can also write about it, what kind of business you are building, ठीक है। And how you want to grow, यानी what kind of strategy you adopted for growth in your future, ठीक है, growth in future, for what kind of strategy you adopted, it means that how you want to grow, how you want to grow over the next year, यानी आप कैसे आगे बढ़ना चाह रहे हो, नेक्स्ट मतलब आगे कैसे आप बढ़ोगे, तो ये सारी चीजें विजन में आ जाएंगी, यानी बिजनेस प्लान जो हम लिख रहे हैं उसमें विजन में ये सारी पॉइंट्स आ जाएंगी। पहला फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि बेसिकली आप कौन सा बिजनेस बना रहे हो, आपके बिजनेस का बेसिकली प्लान क्या है, कंसेप्ट क्या है, और आप अपने आप को ग्रो कैसे करोगे बिजनेस में, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स आर रिटन इन विजन। सेकेंड पॉइंट, मिशन, मिशन, मिशन,
यहाँ पर you will elaborate the things, you will describe the things in vision and in vision में तो आप चीजों को कहाँ देखना चाह रहे हो, यानी लॉन्ग टर्म में आप अपने बिजनेस को कहाँ देखना चाह रहे हो. मिशन लाइक आप क्या क्या चीजों को करोगे, ठीक है. तो मिशन में इलाबोरेटेड कुछ चीजें होंगी, जैसे यू विल इलाबोरेट, यू विल डिस्क्राइब अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विच यू आर प्रोवाइडिंग, यानी कि जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज बेसिकली आप प्रोवाइड कर रहे हो, कस्टमर को दे रहे हो, उसके बारे में आप मिशन में लिखोगे. यानी कि डिटेल द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज you plan to provide, you plan to provide, you plan to provide, what kind of product and services you are plan to provide, ठीक है. and आगे identify your target market, identify your target market, identify your target market, identify your target market. all these things comes under the mission. मिशन में क्या करना है, द प्रोडक्ट जो है, आप कौन सा प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट में आइडेंटिफाई करोगे टारगेट मार्केट, यानी उस विजन को अकॉम्प्लिश करने के लिए, उस गोल को अकॉम्प्लिश करने के लिए मिशन में जो इम्प्लीमेंटेशन करोगे वो उसके बारे में आप सोचोगे कि कौन सा आपका टारगेट मार्केट होगा. सो आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट, आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट, ठीक है. यहाँ पर यूनिक सेलिंग स्ट्रैटेजी वगैरह आप कैसे बनाओगे, यानी प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केट में सेल करोगे, तो इसकी स्ट्रैटेजी वगैरह भी इसी में सोचोगे आप मिशन में. मिशन में क्या होगा, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग, पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट आप लिखिएगा कि यूनिक स्ट्रैटेजी सेलिंग का क्या होगा, टारगेट मार्केट आपका कौन होगा, ठीक है. तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द मिशन. मिशन. नेक्स्ट आपका प्राइसिंग स्ट्रैटेजी वगैरह बनाओगे. यहाँ पर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी सिर्फ लिख लीजिए, क्योंकि अभी मैं स्ट्रैटेजी, आई डोंट कॉस्ट रखोगे अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, उसको भी लिखोगे, डिटरमाइन करोगे. प्राइसिंग स्ट्रैटेजी मतलब हाउ मच यू आर गोइंग टू चार्ज फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, हाउ मच अमाउंट यू आर गोइंग टू टेक फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है. एंड हाउ यू विल सेट योर प्राइस एज कंपैरेटिवली टू कॉम्पिटिटर्स, राइट. कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में कितना प्राइस सेट करोगे कि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो आपके तरफ. तो यहाँ पर आप प्राइस क्या सेट करोगे, ऑब्वियसली द पीपल एंड द कंज्यूमर्स आर प्राइस सेंसिटिव, राइट. whatever they are getting in the low price, they will try, they are basically attracted toward those product only. तो यहाँ पर जो सिचुएशन है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एक बहुत मेजर फैक्टर है आपको कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने का. तो ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में प्राइस को कितना सेट करना है, कितना रखना है, उसके बारे में सोचेंगे. मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट कैसे करना है प्रोडक्ट का, मार्केट एंड एडवर्टीजमेंट कैसे करना है प्रोडक्ट का, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग. ट्रेडिशनल तरीका भी हो सकता है, डिजिटल तरीका भी हो सकता है. व्हाट आर द ट्रेडिशनल वेज, न्यूज़पेपर, जर्नल्स, टेलीविजन, ब्रॉडकास्टिंग, एवरीथिंग कम्स अंडर द traditional way, but nowadays social media or digital media are using for the advertisement and marketing purpose, right? So we can write in marketing and advertisement या advertising कैसे करेंगे हम, वो हम कर सकते हैं, explain करेंगे business plan में. ये सारा business plan first point चल रहा है. सेकेंड में ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा आपके कंपनी को. ऑब्जेक्टिव का मतलब है ग्रोथ, आप कितना चाहते हो अपनी कंपनी का. अगर आपने एक प्रोडक्ट के साथ अपने बिजनेस को शुरू किया है तो फिर आप कितना अपने आप को डाइवर्सिफाई बनाना चाहते हो, कितना प्रोडक्ट लाइन ऐड ऑन करना चाहते हो, आप कितना ग्रोथ, सर्वाइवल, सारी चीजें आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगी, ठीक है. टाइम स्पेसिफिक गोल वगैरह आप इसमें सेट करोगे ऑब्जेक्टिव्स में. रेवेन्यू टारगेट वगैरह देखोगे, इन्वेस्टमेंट रिटर्न के बारे में देखोगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स में आपके आ जाएंगे. क्लियर हो गया. बिजनेस में क्या क्या चीजें हम देखेंगे. बिजनेस में मेजर पॉइंट देखा जाए तो बिजनेस प्लान में विजन क्या है, मिशन क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कैसे सेट करना है, मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट. सो वी विल प्लान या विल आउटलाइन एवरीथिंग बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस. पहला फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया सबको, बिजनेस प्लान. रोशन, नेक्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट लिखिए, सेकेंड पॉइंट लिखिए. ऑब्टेन स्टार्टअप कैपिटल, ऑब्टेन स्टार्टअप कैपिटल, ऑब्टेन स्टार्टअप कैपिटल और स्लैश देकर एक और लाइन लिख लीजिए, क्रिएट अ बजट, क्रिएट अ बजट. ऑब्टेन स्टार्टअप कैपिटल स्लैश देके आगे लिख लीजिए क्रिएट अ बजट.
क्रिएट अ बजट। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। सो यहाँ पर आप स्टार्टअप कैपिटल कहां से रेज कर सकते हैं, या फिर बजट बनाना, ठीक है। तो बजट बनाइएगा एंड देन आफ्टर दैट ऑब्वियसली विल डिफाइन दैट वेयर फ्रॉम वेयर यू विल गेट द फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीजें आएंगी, अगर सिर्फ ऑप्टेन स्टार्टअप कैपिटल में देखा जाए, अगर हम सिर्फ पैसे के ऊपर चीजों को देखें, अभी बजट की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ पैसे कहां से आएंगे, तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे कि आप अपनी सेविंग्स को यूज कीजिएगा बिजनेस को शुरू करने के लिए, या तो फिर आप लोन लीजिएगा, ठीक है, बिजनेस के लिए जो पैसे चाहिए उसके लिए लोन लीजिएगा, या तो अपनी सेविंग से बेसिकली पैसे दीजिएगा। कोई थर्ड पार्टी सपोर्ट मिल रहा है तो यू विल गेट दैट ऑल्सो, ठीक है। लोन जो प्रोसेस होता है ऑब्वियसली इट विल टेक लॉन्ग टाइम, आपके बिजनेस को शुरू करने में लोन, बिजनेस को शुरू करने के लिए इट विल टेक लोन, इट विल टेक लॉन्ग टाइम, बिकॉज सारे लीगल प्रोसीजर्स आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। अगर आपको पॉसिबल हो तो कोई इनफॉर्मल वे से आप पैसे लेंड भी कर सकते हो, ले भी सकते हो, राइट। तो यहाँ पर ऑब्टेन करने के लिए स्टार्टअप कैपिटल, यानी कि पैसा जो बेसिकली हम कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं कैपिटल को शुरू करने के लिए, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे सेकेंड स्टेप में, ठीक है। और बजट हम किस किस चीजों को ऊपर बनाएंगे, तो क्रिएटिव बजट में क्या होगा कि हमारी कोशिश यही होगी कि हम मिनिमम से मिनिमम एक्सपेंस करें, यानी कि स्टार्टिंग में, क्योंकि आपका बिजनेस न्यू है, आप बहुत ज्यादा पैसा इनकर और खर्च नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक प्रॉपर बजट, एक इफिशिएंट बजट बनाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप क्या क्या चीजों को देखोगे कि यहाँ पर आप कैसे कैसे कॉस्ट को डिटरमाइन करोगे, हाउ यू विल डिटरमाइन या हाउ यू विल मेक अ बजट। फर्स्ट यू विल थिंक दैट व्हाट काइंड ऑफ अमाउंट यू नीड टू पे फॉर द लाइसेंस एंड परमिट्स, यानी लीगल चीजों को कंप्लीट करने के लिए, लीगल कंप्लायंसेस को फुलफिल करने के लिए, लाइसेंस परमिट्स वगैरह लेने के लिए। अब ये भी बता दो कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग फॉर्म में अलग अलग टाइप के लीगल कंप्लायंसेस है। व्हेन वी विल मूव टुवर्ड द टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देन आई विल एक्सप्लेन इट वन बाय वन। सो यहाँ पर लाइसेंस के लिए, परमिट्स के लिए हाउ मच अमाउंट यू नीड टू पे, ये देखिएगा। आपको कौन कौन सी मशीनरी को परचेज करना है, यानी इक्विपमेंट्स कौन कौन से लेने हैं, आप बजट में उसके अमाउंट को जोड़िएगा, ठीक है। लीगल फी वगैरह, अगर आपने बिजनेस को इनकॉर्पोरेट किया है, अगर आप रजिस्ट्रार के पास गए, कुछ और भी लीगल अगर कोई फीस वगैरह देने की जरूरत है, या फिर आपने कंसल्टेंट को हायर किया हो, मे बी अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए यू मे बी हायर सम कंसल्टेंट, तो कोई लीगल फी वगैरह देना होगा, उसका अमाउंट का भी बजट आप बनाइएगा। बिजनेस की इंश्योरेंस वगैरह की जरूरत पड़े, इंश्योरेंस वगैरह कराने की, उसके बारे में, उसमें पैसा कितना लगेगा, उसके बारे में बजट। Market research, obviously that is the major task if anyone is starting the business, because if you have no idea that what is going on in the market, you can't able to make that kind of product and services. What is in the trend, that is the biggest question for all the business, for all the startups, right? So यहाँ पर market research आप कीजिएगा, उसमें आपके cost जाएंगे, वो हो गया। Inventory is something which is related with the stock, ठीक है। रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट के बारे में सोचिएगा, रॉ मटेरियल कहां से लेना है अगर आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो, ठीक है। ट्रेड मार्किंग, यानी अगर आपने लाइसेंस बेसिकली ले लिया, ट्रेड मार्किंग वगैरह उसके बारे में। रेंटल लीज, अगर आपने कोई बिल्डिंग को लीज में लिया है अपने बिजनेस के लिए, तो उसके अमाउंट वगैरह। उसके अलावा ये सारी जो कॉस्ट हो गई, ये तो स्टार्टअप कॉस्ट हुआ, यानी कि ये सारे पैसे जो आप बिजनेस को शुरू करने में आपको लगेंगे, ये सारे पैसे जो मैंने बताए, स्टार्टिंग द बिजनेस में जो आपके परमिट्स, लाइसेंस हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, लीगल फीस हो गया, मार्केटिंग रिसर्च हो गया, फिर आपके वेबसाइट डेवलपमेंट और ब्रांड और वेबसाइट डेवलपमेंट। आजकल तो सारी कंपनी, सारे स्टार्टअप्स वगैरह वाले ऑनलाइन भी अपने आप को बेसिकली क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो इसमें आपके स्टार्टिंग में कॉस्ट जाएंगे, आपने वेबसाइट वगैरह बनाया, तो ये आपके स्टार्टअप की कॉस्ट हुए। ऑनगोइंग कॉस्ट वगैरह भी, आप इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हो, आप लोगों से मिल रहे हो, ठीक है। एम्प्लॉइज अगर आपने हायर किया तो आपकी मंथली सैलरी आपको देनी है उनको, तो एक तरीके से ये सारे के सारे चीजों के लिए आपको बजट बनाना पड़ेगा। और इन सब बजट बनाने के बाद जो हमने अभी इससे पहले पढ़ा कि कहाँ से ये सारे स्टार्टअप कैपिटल, कहाँ से पैसे आएंगे, इन सब चीजों के बारे में हम सोचेंगे। तो दिस इज द सेकेंड स्टेप। द फर्स्ट वन इज बिजनेस प्लान एंड द सेकेंड वन इज टू थिंग, दैट इज बजट कैसे बनाना है, यानी कि कॉस्ट का बजट बनाएंगे, कॉस्ट का, पैसे का, एंड वेयर, फ्रॉम वेयर वी विल गेट द अमाउंट, व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट अवेलेबल इन द मार्केट, we'll think about it. So in second we'll
basically try to get or obtain the startup capital or amount. Clear हो गया सबको? Everyone? Yes, ma'am. लोन ले रहे हैं बैंक वगैरह से, तो गवर्नमेंट के थ्रू भी असिस्टेंस वगैरह मिलेगा, सब्सिडी वगैरह, लेकिन वो सब के प्रोसेस जो इतनी शॉर्ट नहीं होते, लेकिन हमें कैपिटल जो स्टार्टिंग की चीजों को लेने के लिए चाहिए, उसके लिए या तो लोन लेंगे, पैसा इधर उधर से फिर उधार पे ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, अपने सेविंग्स लगा सकते हैं। गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहेगा, लोन में कई बार सब्सिडीज मिल जाते हैं, तो जैसे आपने 50 लाख का लोन लिया तो आपको 5 लाख की सब्सिडी मिल गई, तो मतलब 5 लाख छूट हो गए, मतलब छूट मिल गया आपको। लेकिन स्टार्टिंग में इन सो मेनी केसेस यू विल नॉट एबल टू गेट लोन वेरी इजीली, ठीक है, कभी भी लोन बहुत इजीली नहीं मिलेगा, तो मे भी आपको अपने सेविंग्स को यूज करना पड़े। समझ में आ गया बेटा निशांत? थर्ड वन, सेटअप द लीगल बिजनेस स्ट्रक्चर, सेटअप द लीगल बिजनेस स्ट्रक्चर, सेटअप द लीगल बिजनेस स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि अब आप जो अपनी कंपनी को किस तरीके का कौन सा बिजनेस फॉर्म को यूज कर रहे हो, ठीक है। सेटअप द लीगल स्ट्रक्चर में सेटिंग योर कंपनी अप एज द कॉर्पोरेशन और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, कोई पॉपुलर एंटिटी, यानी कि आप या फिर स्मॉल बिजनेस, आप किस तरीके से मतलब किस तरीके का बिजनेस शुरू कर रहे हो आप, या तो आप एक सोल प्रोप्राइटर होगे, ठीक है, या तो अपनी कंपनी शुरू कर सकते हो, या तो पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हो। तो यानी कि आप कैसे फॉर्म को मतलब कैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को ऑप्ट कर रहे हो, ठीक है, दैट इज द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में यानी कि आपको अपने बिजनेस स्ट्रक्चर को डिसाइड करना है, डिसीजन ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर, दिस इज द थर्ड पॉइंट। और वी कैन से दैट सेटिंग अप अ लीगल एंटिटी, सेटिंग अप अ लीगल एंटिटी। तो इसमें मैं दो दो पॉइंट इसलिए लिखवा दे रही हूँ सबको। सो इन द third point, what we need to do basically we decide the business structure, ठीक है, business structure या business form, किस तरीके के बिजनेस को आप स्टार्ट कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, पार्टनरशिप, ठीक है, तो कोऑपरेटिव, जॉइंट स्टॉक कंपनी, हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ बिजनेस फॉर्म्स, राइट। तो किस तरीके के स्ट्रक्चर को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम इसमें देखेंगे, स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे, ठीक है। सेटिंग अप योर कंपनी, कॉर्पोरेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, एंटिटी स्ट्रक्चर, दिस प्रोटेक्ट, ये अब जो आप फॉर्म बना रहे हो इसमें दो तीन चीजों को देखोगे आप। दिस प्रोटेक्ट द ओनर्स पर्सनल एसेट, बिजनेस डेब्ट्स, लाइबिलिटीज, इनकॉर्पोरेटिंग जो है बेसिकली आपको टैक्स बेनिफिट्स भी देगा, और साथ साथ और भी चीजें हैं ध्यान, लेकिन मैं अब ध्यान दीजिएगा। शॉर्टकट में सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बताती हूँ। सोल प्रोप्राइटर्स वैसे होते हैं जो बेसिकली स्टार्ट करते हैं अपने बिजनेस बहुत ज्यादा स्मॉल स्केल में, ठीक है, और वो कोई भी हो सकते हैं, छोटे मोटे ब्यूटिशियंस हो सकते हैं, आपके बुटीक्स वाले हो सकते हैं, जनरल स्टोर के हो सकते हैं, कोई भी अपना स्मॉल बिजनेस शुरू कर सकता है, राइट। अब सोल प्रोप्राइटर्स जो होते हैं ना, उनकी जो टैक्स होती है यानी जीएसटी जो अमाउंट होता है, जीएसटी में रजिस्टर कराना होता है उनको। चलिए इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, अभी सोल प्रोप्राइटरशिप कंप्लीट कराऊंगी। बट सोल प्रोप्राइटर्स के ना पर्सनल एसेट्स भी लग जाते हैं अगर उनका बिजनेस जो है वो बंद हो जाए। तो अपने एसेट्स को, लाइबिलिटीज को कैसे मैनेज करना है, टैक्स बेनिफिट्स कैसे लेना है, इसके लिए एक पर्टिकुलर लीगल एंटिटी में कन्वर्ट करना अपने बिजनेस को बहुत जरूरी है, यानी उसको प्रॉपर रजिस्टर करना, एक बिजनेस स्ट्रक्चर को चूज करना। तो इसमें ये तो लीगल बिजनेस एंटिटी हो गया, इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए क्या क्या चीजें होती है। Incorporating your small business, incorporating your small business, incorporating your small business, protect your personal assets, protect your personal assets, protect your personal assets from business liability, from business liability, ठीक है, business liability. It means, आगे लिखिए, it means the business is legally considered, business is legally considered as a separate entity, as a separate entity. Incorporating your small business protect your personal assets from the business liability. It means the business is legally considered. It means business is legally considered. It means business is legally considered a separate entity. Separate entity. So your YOUR, so your house, car and other property, so your house,
car and other property cannot be seized to pay business debts or legal judgments. Incorporating your small business protect your personal assets from business liability. It means business is legally considered as a separate entity. So your house, car and other property cannot be seized to pay business debts or legal judgment. ठीक है? And even you will get the tax advantages. ठीक है? आगे में नीचे लिखिए टाइप्स ऑफ बिजनेस फॉर्म्स और स्ट्रक्चर. टाइप्स ऑफ बिजनेस फॉर्म्स और स्ट्रक्चर. कौन कौन से अवेलेबल हैं आपके पास? क्या चीज बेसिकली कह सकते हैं ऑप्शंस कौन कौन से हैं, कौन सा आप स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हो, कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर सकते हो. ठीक है, तो इसमें लिखिए लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप. ठीक है, आगे लिखिए पार्टनरशिप फॉर्म, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप फॉर्म्स, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एंड सोल प्रोप्राइटरशिप. तो ये आपके टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर है, यानी इनमें से आप जो भी अडॉप्ट करना चाहते हो यू कैन बेसिकली चूज एंड यू विल डू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट. ठीक है, जो आपकी कंपनीज होते हैं, जो आपके कंपनी होंगे, ज्यादातर कंपनी जो होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा. रजिस्ट्रार के पास नेम सेलेक्ट करना, तो कंपनी बनाना इज द लॉन्ग प्रोसेस एज कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटर्स या कोई स्मॉल बिजनेस शुरू करने के लिए यू विल नीड हार्डली 10 to 15 days बिकॉज वेरी लेस लीगल कंप्लायंसेस आर देयर. ठीक है, सो व्हाट आर द बिजनेस के जो अलग अलग टाइप के फॉर्म्स लिखवाए है ना, इसको मैं एक एक करके अलग से भी एक्सप्लेन करूंगी. इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वो हम अच्छे से करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए. समझ में आ गया कि हमें क्या देखना है? फिर अब कोई हमें लीगल एंटिटी यानी कि मतलब है अपनी कंपनी को प्रॉपरली रजिस्टर कराना, एक प्रॉपर बिजनेस स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करना है. ठीक है, अब कौन से फॉर्म के साथ मेरा बिजनेस जो है वो रन करेगा. क्लियर हो गया? तो दिस इज द थर्ड पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्टेप obtain EIN, employer identification number. ठीक है, जो EIN होता है बेसिकली, ये जो होता है ये किस चीज के लिए यूज होता है? एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर. इसको हमें लेना है, ऑब्टेन करना है. आफ्टर रजिस्ट्रेशन विल गेट इट. ठीक है, तो यहाँ पर जो EIN है वो किस चीज के लिए है? दे आर इशूड बाय द IRS. आपके IRS के द्वारा इसको बेसिकली बनाया जाता है. एक मिनट वेट करना. जो एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, इसका मतलब बेसिकली क्या होता है? ये आपको एक ऐसा नंबर प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू आप एक रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर रहोगे. आप अपने अंडर में कितने एम्प्लॉयज को कैसे आप हायर करोगे, उनको सैलरी कैसे पे करोगे और आप कितने लाइबल होगे, आप जैसे PPF वगैरह जो और सारी चीजें हैं उनके बेनिफिट्स आप कैसे लोगे और कैसे एम्प्लॉयज को दोगे. तो इसके लिए एक रजिस्टर्ड EIN, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर की रिक्वायरमेंट होती है. आफ्टर दैट यू आर एबल टू हायर द एम्प्लॉयज. मतलब अगर आपने एक बिजनेस स्ट्रक्चर बना लिया, अब आपको अपने एम्प्लॉयज को रखना है, तो उसके लिए यू जस्ट नीड टू गेट अ रजिस्टर्ड EIN.
एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। एम्प्लॉयर कौन होता है? जो एम्प्लॉइज रखता है यानी जॉब देता है, तो इसके लिए एक रजिस्टर्ड EIN की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और ये बेसिकली कब ज्यादातर जरूरत पड़ता है? जो EIN जो होता है, ठीक है, वो ज्यादातर कंपनी को कॉर्पोरेट करने के टाइम पे ही यू विल गेट। कंपनी को कॉर्पोरेट यानी इनकॉर्पोरेशन के जो पूरे सिस्टम है, जैसे आपको कंपनी जब आप रजिस्टर करा रहे होते हो तो कई बार EIN जो है आपको उसी टाइम पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, यानी कि कंपनी जब कॉर्पोरेट हो रही होती है तभी यू विल गेट द EIN, तभी आपको मिल जाएगा। या तो आप सेपरेटली भी इसके लिए अलग से भी अप्लाई कर सकते हो, बट ज्यादातर कंपनीज में क्या होता है कि ये आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको ये EIN नंबर मिल जाएगा, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट इंडियन रेवेन्यू सर्विस, तो इसके थ्रू भी आप ले सकते हो। ये नेक्स्ट लिखिए इसमें, सेटिस्फाई। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड वाला सबको समझ में आ गया ना? मैंने अभी कितने पॉइंट्स लिखवाए? 4th पॉइंट लिखवा दिए, 5th पॉइंट की तरफ हम मूव कर रहे हैं ना। 4 पॉइंट कंप्लीटेड, 5th पॉइंट, सेटिस्फाई द बिजनेस लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट। सेटिस्फाइंग द बिजनेस लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट यानी आपको बिजनेस के लिए no, we are not talking about this EIN, but we are talking about that how you will hire the employees. If you are not registered, maybe after giving jobs for 2-3 peoples, आपने जॉब दे दिया एंड उसके बाद आपने उनकी सैलरी नहीं दी, ठीक है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक आइडेंटिफाइड आप पर्सन रहेंगे, आप एक एम्प्लॉयर रहेंगे, तो आपके सारे जो बेसिकली आप एक बोल सकते हैं ना कि आप एक रजिस्टर्ड पर्सन रहेंगे, तो कभी भी कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है एम्प्लॉइज वगैरह से रिलेटेड, तो दैट कैन बी इजिली सॉल्व, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग कि हाँ, आप एम्प्लॉइज को जो जो बेनिफिट्स देने वाले हो, जैसे EPFO के अंडर में PPF वगैरह, ग्रेचुइटी फंड्स एंड अदर इंसेंटिव जो देते हो, तो उसको भी प्रॉपरली डिटरमाइन कर सकते हो आप। EIN मतलब डिटरमाइन कर सकती है कौन? रजिस्ट्रार, कि आप एक एम्प्लॉयर, एक रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर हो, तो अब आपको ये सारी चीजों को फॉलो करना है फॉर द एम्प्लॉइज। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ऋषांत बेटा? यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंट, सेटिस्फाइंग द बिजनेस लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट। सेटिस्फाइंग द बिजनेस लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है। बहुत सारे स्टेट में, कंट्री में, लोकल गवर्नमेंट में ऑब्वियसली कभी भी हमें इन सब से क्या जरूरत पड़ सकती है? लाइसेंस लेने की, ठीक है। बिजनेस को शुरू करने से पहले या बहुत सारे कंपनीज अगर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, तो उसके लिए लाइसेंस होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए कुछ चीजों का रिक्वायरमेंट भी करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को, ठीक है। कंपनी जो है वो बिल्कुल बोल सकते हैं कि इसके जो इसमें जो आपने नाम रजिस्टर करवाया है वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो नेम आप यूज कर रहे हो बिजनेस और कंपनी को आपने रजिस्टर कराने के लिए, वो यूनिक रखिए, ठीक है। सारे किस आपका कहाँ पर बिजनेस लोकेशन कहाँ है, ठीक है, उसका एड्रेस प्रूफ, आपका पैन कार्ड, ठीक है, आपके पैन कार्ड वगैरह, ठीक है, कितने सारे लोग और कितने लोगों के साथ, अगर आप सिंगल स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस तो ठीक है, अगर आप बहुत सारे सिंगल स्टार्ट करने वाले जो कंपनी जिसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है वो OPC होते हैं, 1 पर्सन कंपनी। अभी 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ था ना कंपनीज एक्ट में, उसके बाद OPC को बेसिकली रजिस्टर मतलब OPC को लाया गया है। तो OPC के बारे में हम बात नहीं करेंगे, बस मैं वही बता रही हूँ कि अगर कोई एक पर्सन है तो उसका पैन कार्ड, अगर 3-4 लोग मिलकर कंपनी शुरू करें तो उन सबके पैन कार्ड रजिस्टर्ड, आपका बोल सकते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, उनका नाम, अगर NRI है मतलब नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या रेसिडेंट है, वो सारी चीजें, नाम आपके बिजनेस का क्या है, और मतलब ये जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो नाम जो है वो दूसरे कंपनी के साथ मैच नहीं होने चाहिए, तो ये सारी कंप्लायंसेस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस आपको फुलफिल करना पड़ेगा लाइसेंस को लेने के लिए, ठीक है। सो वी जस्ट नीड टू सेटिस्फाई द ऑल द बिजनेस लाइसेंस रिक्वायरमेंट, ठीक है। और कंपनी जो है वो बिना बिजनेस लाइसेंस के चल भी नहीं सकती, अब चला भी नहीं सकती, दैट इज इलीगल थिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब सारी रिक्वायरमेंट्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। और इसमें एक और चीज आता है, नेम योर बिजनेस। तो नेम योर बिजनेस मतलब क्या हो गया, इसी में आएगा सेटिस्फाइंग द बिजनेस लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट में नेम योर बिजनेस। लाइक ऑब्वियसली आपने अपने बिजनेस का जो नाम देना है दैट शुड बी यूनिक,
ठीक है, और बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है एक प्रॉपर और एक अट्रैक्टिव नेम को चूज करना। तो आप अपने बिजनेस को क्यों स्टार्ट कर रहे हो, क्या रीजन है, कौन से प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हो, तो यू विल गेट आइडिया फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स टू बेसिकली नाम को रखने के लिए यू विल टेक आइडिया फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, कोई मतलब एक कह सकते हैं कि ब्रेन स्टॉर्म वाला काम है, यानी बहुत टाइम टेकिंग वाला काम है एक नाम रखना। और कई बार अगर नाम अगर आपने गलत मतलब रख दिया, यानी ऐसा रख दिया जो दूसरे कंपनी के साथ मैच कर रहा है या कुछ भी, तो आपका जो है ना रजिस्ट्रेशन पूरा होगा ही नहीं, समझ गए। तो यहाँ पर आपको बिजनेस लाइसेंस के लिए सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी गवर्नमेंट के रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है, उनको मानना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखिए, और इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी आपके, ठीक है। नेम रखना, लोकेशन कहाँ पर आपने चूज किया है वो बहुत मैटर करता है, इंडस्ट्रियल एरिया है, साइड एरिया है, हिली एरिया है, टेरेन एरिया है, वो सारी चीजें भी मैटर करेंगे आपके साथ बिजनेस लाइसेंस रिक्वायरमेंट में, सेटिस्फाइंग बिजनेस लाइसेंस रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, क्रिएट एंड द नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज एस्टैब्लिश अ वेब प्रेजेंस। वेब प्रेजेंस का मतलब अब आप इंटरनेट में, अब आप ऑनलाइन दिखने लगे, ठीक है, यानी कि अब आपका जो प्रेजेंस है वो कहाँ दिखेगा, इंटरनेट के थ्रू। यू विल एनीवन कैन इजीली फाइंड आउट बाय यूजिंग गूगल एंड अदर ब्राउजर्स, ठीक है, गूगल क्रोम एंड ये सब को यूज करते हुए आप कहीं भी अब दिखोगे। आपका एक ऑफिशियल वेबसाइट क्रिएट करना, तो इसमें एक चीज लिखिए, establish a web presence, पहला establish a web presence, उसके बाद स्लैश देकर लिखिए create an online presence, create an online presence, establish a web presence स्लैश देके लिखिए create an online presence, यानी अब ऑनलाइन दिखना शुरू हो जाइएगा। वेबसाइट बनाना किसी भी स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और आजकल के टाइम में तो बहुत ज्यादा, बिकॉज एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन द वर्क के लिए ज्यादातर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ज्यादातर लोग डिपेंडेंट हैं, ठीक है। द पीपल आर यूजिंग सोशल मीडिया लॉट, सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस एंड एक ऑफिशियल वेबसाइट बनने से एक पर्सन को घर पे बैठे बैठे दे विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस एंड अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है, उसके बारे में उनको तुरंत आइडिया लग जाएगा। पहले ट्रेडिशनल क्या होता था, जब इंटरनेट और ये उतना ज्यादा नहीं था तो लोग जब विजिट नहीं करते थे तब तक उनको कोई आइडिया नहीं होता था, ठीक है, पर्टिकुलर प्लेस के बारे में। बट नाउ डेज बाय सिटिंग हियर वी कैन फाइंड आउट कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स इन द अनदर स्टेट्स एज वेल, लाइक दिल्ली में, आपका कोलकाता, हर जगह के बारे में आप इजिली बैठ के सर्च कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पर स्मॉल बिजनेस के लिए आजकल इंटरनेट सर्चेज और सोशल मीडिया के टाइम पे बहुत जरूरी है प्रेजेंस होना। आप अपने यूआरएल को, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल, जो आपका लिंक, यूआरएल को बेसिकली आप रजिस्टर कराइए, ठीक है, वेबसाइट बनवाइए, ऑफिशियल वेबसाइट बनवाइए, ठीक है, जो आपके कंपनी के लिए रिलेवेंट भी हो, उसमें आप सारे इंफॉर्मेशन को डालिए अपने वेबसाइट में, ठीक है। और एक तरीके से वेबसाइट जो है वो एक इफेक्टिव आपके लिए चैनल बनेगा, किस चीज के लिए, प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। क्लियर हो गया? तो इन दिस केस, इसमें establish a web presence में what you need to do, you just need to make the official website, register the URL and try to give all kind of information about the product and services to the customer, and this will become the effective way to selling the product, right? So यहाँ पर आपको एक web presence या फिर एक online platform create करना है, online presence दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज भी होता है, जैसे ऑनलाइन अगर आप प्रोडक्ट या ऑनलाइन अपना कोई वेबसाइट बनाइएगा ना, तो आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव होगा, बिकॉज द पीपल डोंट नीड टू कॉल यू अगेन एंड अगेन फॉर आस्किंग एनी क्वेश्चन, दे विल फाइंड एवरीथिंग ऑन वेबसाइट, ठीक है। तो एक ऑफिशियल ईमेल एड्रेस, अपना फोन नंबर और बिजनेस में जो भी चीजों का जो रिक्वायरमेंट है उन सबको प्रॉपरली वेबसाइट में रखिए, इन्फॉर्मेशन दीजिए, हर चीज का इन्फॉर्मेशन, नोटिस, कोई भी चीज है सब कुछ को आप वेबसाइट में लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, establish a web presence, सबको क्लियर हो गया? establish a web presence, everyone? Yes. मैम समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है आपका, establish a web presence। नेक्स्ट पॉइंट इज develop business collateral, develop business collateral, COLLATERL, collateral, डेवलप बिजनेस कोलेट्रल, ठीक है। अब बताइए कोलेट्रल पता है क्या होता है?
कोलेट्रल क्या होता है? एविडेंस होता है। इसका मतलब एक्चुअली एविडेंस होता है, कुछ प्रूफ होता है। अब आपका बिजनेस शुरू हुआ है तो अब आपको बहुत सारी चीजें जो है प्रमोशन के लिए यूज करनी पड़ेगी, यहाँ पर कोलेट्रल डेवलप करना पड़ेगा। जैसे लेटर हेड्स बनाया आपने, आपने अपने बिजनेस के नाम पे लेटर हेड्स बनवाए। लेटर हेड्स पता है ना, जिसमें नोटिस वगैरह छप कर जाती है, तो लेटर वगैरह बनाया, लेटर हेड्स वगैरह बनाओगे आप, विजिटिंग कार्ड्स वगैरह बनाओगे, ठीक है। कंपनी का उसमें क्या क्या चीजें होंगी, बिजनेस कार्ड्स, लेटर हेड्स, ये सब में क्या क्या चीजें आप इंक्लूड करोगे? लोगो, ठीक है, लोगो वगैरह लगाओगे, कंपनी का नाम लिखोगे, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजों से आप क्या करोगे, फाइनली आप अपने बिजनेस के कोलेट्रल या एविडेंस को बेसिकली तैयार करोगे, रेडी करोगे, ठीक है। अब जैसे कोई नया बिजनेस शुरू करता है, देन यू विल विजिट, मान लीजिए रोशन ने बिजनेस शुरू किया अपना, ठीक है। अब इसने कार्ड्स वगैरह क्या किए हैं, बेसिकली प्रिंट करवाए। अब फॉर द प्रमोशन पर्पस, इफ ही विल मीट एनीवन, ही विल स्टार्ट डूइंग द नेटवर्किंग काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो ही व्हाट ही विल डू, ही विल स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द बिजनेस कार्ड्स जब भी ये किसी से मिलेगा। So this kind of thing is a part of the promotion, or we can say that this is a collateral and this is showing the this is promoting your business. Clear हो गया? बहुत सारे लोग अभी के टाइम पे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं क्या करते हैं पता है, जीएसटी काउंसलर वगैरह बहुत ज्यादा, अभी जीएसटी रिसेंटली आया है टैक्स, तो इसमें बहुत सारे लोग क्या करेंगे ना, काउंसलर्स मतलब वो कार्ड्स वगैरह दे देंगे कि मैम प्लीज टेक माय कार्ड, इफ यू विल नीड यू कैन कॉल मी एनी टाइम, लाइक दिस। तो व्हाई दे आर बेसिकली गिविंग दिस, बिकॉज आपको एक हमेशा याद रहे, रिमाइंडर रहे, आप उस कार्ड को जब भी देखो यू विल रिमाइंड द बेसिकली अबाउट द बिजनेस। सो बाय दिस वे यू हैव टू जनरेट द कोलेट्रल फॉर योर बिजनेस। क्लियर हो गया? कोलेट्रल इज समथिंग दैट इज नोन एज एविडेंस, प्रूफ, ठीक है, एविडेंस जिसको हम कहेंगे। जैसे कि बोल सकते हैं ना कि कोलेट्रल जैसे हम ज्यादातर बैंक के लिए यूज करते हैं कि लाइक बैंक से लोन लेंगे तो वी जस्ट नीड टू सबमिट द कोलेट्रल, राइट। सो यहाँ कोलेट्रल का मतलब वही है सबूत, प्रूफ। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, मतलब आप एक तरीके से प्रमोशन करना शुरू कर दीजिएगा अपने बिजनेस का। यू विल स्टार्ट प्रमोटिंग योर बिजनेस, मींस बाय डेवलपिंग द बिजनेस कोलेट्रल यू विल स्टार्ट द प्रमोटिंग योर बिजनेस। सबको समझ में आ गया? यू विल अनाउंस अबाउट ऑल द थिंग्स, यू विल मेक द अट्रैक्टिव पेजेस फॉर एडवर्टीजमेंट एज वेल, ठीक है। फिर आप हो सकता है अपनी एम्प्लॉइज के लिए यूनिफॉर्म वगैरह लेकर आ जाओ, उनके थ्रू भी प्रमोशन होगा। डोमिनोज वगैरह वाला का देखा है कभी, बाइक, बाइक के पीछे भी लिखा होता है ना डोमिनोज, दैट इज ऑल्सो एविडेंस, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रमोशन, ठीक है। तो लाइक नाउ द बिजनेस पीपल और जो पर्सन विल स्टार्ट डूइंग दिस। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, next point, open a bank account and merchant account, bank account and merchant account। अच्छा, यहां से how many students are from कॉमर्स बैकग्राउंड? 12th में कितने लोगों ने कॉमर्स से पढ़ाई किया है? रेज योर हैंड। अब मैं बताती हूँ आपको कि हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था ना एक कंपनी के बारे में, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, याद आया? अच्छा, कंपनी पढ़ने के टाइम पे हमने एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट बिजनेस लीगल एंटिटी, इस लाइन को हमने पढ़ा था। सेपरेट बिजनेस लीगल एंटिटी का मतलब ये होता है कि आप और आपकी कंपनी अलग अलग है, यानी आपकी कंपनी जो है वो दूसरे कंपनी से, ठीक है, आपकी कंपनी दूसरे कंपनी से अलग है। चलिए कॉलेज का एलआईसी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इसीलिए बोला गया है कि बैंक अकाउंट खुलवाइए, जो बिजनेस चला रहा है या फिर जो प्रमोटर है, ठीक है, उसका अकाउंट अपना अलग होगा, बिजनेस या कंपनी का अकाउंट अपना अलग होगा। क्योंकि कंपनी जो होता है ना, दैट इज द आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि वो एक पर्सन है आर्टिफिशियल, और उसका जो एंटिटी, उसकी जो पहचान है, उसकी जो आइडेंटिटी है, वो जो पर्सन जिसने बिजनेस या कंपनी को शुरू किया उससे अलग है, ठीक है। अब इसीलिए यहाँ पर जो बैंक अकाउंट आप ओपन करवाइएगा, ठीक है, वो आप अपना और मर्चेंट अकाउंट और बैंक अकाउंट इसका मतलब बिजनेस का और अपना मतलब जो कंपनी और उसका अपना अलग अलग करवाइएगा, सेपरेट कराइएगा। अपना पर्सनल अकाउंट ओपन कराइएगा और बाकी एक सेपरेट बिजनेस अकाउंट को आप ओपन कराइएगा। जितने भी ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड होंगे, जितने भी ट्रांजेक्शन आपके पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं, सिर्फ आपके बिजनेस से रिलेटेड, लाइक जैसे आपने बिजनेस के लिए
नोटबुक्स मंगवाया, बिजनेस के लिए पेन मंगवाया, बिजनेस के लिए आपने ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जो भी काम बिजनेस के ट्रांजेक्शन होंगे उसको आप बिजनेस वाले अकाउंट में सब कुछ मेंटेन करोगे, और अपना जो एक्सपेंस होगा अपना पर्सनल में। तो यहाँ पर आपको अकाउंट अपना ओपन करवाना पड़ेगा बिजनेस को रन करने के लिए। सारे ट्रांजेक्शन, पैसे मिलने, पैसे खर्चने, रेवेन्यू आने, सारे के सारे ट्रांजेक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड होगा। क्लियर हो गया? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, परचेज। इसमें समझ में आ गया ओपन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड मर्चेंट अकाउंट। क्योंकि कुछ लोग पूछ सकते हैं कि मैम यहाँ पर ऐसा क्यों है, बिकॉज जो कंपनीज होती हैं उनका जो आइडेंटिटी और एंटिटी है दैट इज सेपरेट फ्रॉम देयर द पर्सन हु स्टार्टेड दैट, ठीक है, दैट बोथ आर डिफरेंट। एंड व्हाई इट इज डिफरेंट, इसका भी एक मैं बता, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज, यहां पर अब आप आइडेंटिफाई कीजिएगा कि वेयर टू गेट हेल्प, यानी कि अब आपको अपने बेसिकली अकाउंटेंट वगैरह आप हायर करना है आपको, ठीक है, एडवाइस वगैरह लेना है कुछ भी, तो उसके लिए आप कहां से हेल्प ले सकते हो उसके बारे में। बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए और भी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो उसके बारे में, बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स वगैरह को आप हायर कर सकते हो, ठीक है। और एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक प्रॉपरली बिजनेस को सेटअप करने के लिए आपको जहां से एडवाइस लेने की जरूरत पड़े, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़े, आप उसको एक्सप्लोर करो, ठीक है। लाइक यहाँ पर यू नीड टू एक्सप्लोर द रिसोर्सेज प्रेजेंट जो है, you will take the advices from the different sources and even you can hire the people for board of advisors। तो ये आपका बैंक अकाउंट के बाद का नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। एंड फाइनली जो सबसे लास्ट स्टेप है दैट इज फॉलो द गवर्नमेंट रूल्स। यानी जो गवर्नमेंट ने जो भी कंपनी को एक गुड कंपनी जो भी है, या फिर आपकी कंपनी जो है वो बेटर कैसे है, और गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस जो भी हैं उनको मेंटेन कीजिए, ठीक है। और कंपनी का जो स्टेटस है और जो कंपनी को जो आपने इनकॉर्पोरेट किया है उसका अब आप गुडविल बनाना शुरू कीजिए, और गवर्नमेंट के सारे कंप्लायंसेस और रूल्स को फॉलो करते हुए। तो ये थे आपके सारे स्टेप्स, जितने भी स्टेप्स थे बिजनेस को, स्मॉल बिजनेस को शुरू करने के लिए, वी ऑलरेडी कंप्लीटेड। ओके, आइडेंटिफाई वेयर टू गेट हेल्प का यहाँ पर मतलब है कि आप कहाँ से कौन कौन से रिसोर्सेस, अगर आपको एडवाइस की जरूरत है आप कहाँ से ले सकते हो, आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेस प्रेजेंट है, आपके कितने एम्प्लॉयज हैं, बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स, उनको भी आप हायर कर सकते हो। अगर आपके पास डायरेक्टर्स वगैरह को हायर करना, रिसोर्सेस लेकर आना, ठीक है, कहाँ से आपको मदद मिल सकती है, एडवाइस कहाँ से मिल सकता है, अकाउंटेंट वगैरह भी आप चाहिए, चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह चाहिए होगा आपको आपके बिजनेस को मैनेज करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह को ठीक करने के लिए, बैलेंस शीट मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए जो बेसिकली आपको हेल्प कहाँ से मिलेगी, तो इसको बेसिकली हम एक्सप्लोर करना है। क्लियर हो गया वर्षा? यस मैम। ठीक है बेटा, चलिए। एंड फाइनली विद द रूल रेगुलेशंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज को फॉलो करते हुए आप बिजनेस को सेटअप कीजिए अपना, मतलब बिजनेस को चलाइए अब अपना, लीगल रिक्वायरमेंट्स को करते हुए अपना बिजनेस को ऑपरेट कीजिए। तो ये सारी चीजें, जितनी भी स्टेप्स मैंने आप लोगों को आज करवाया है, किसी को कोई डाउट है किसी भी स्टेप में? चलिए, मुझे कौन सारे स्टेप्स बताएंगे? हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट द डिफरेंट स्टेप्स जो भी हम लोगों ने अभी किए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, स्मॉल बिजनेस को शुरू करने के लिए स्टेप्स कितने सारे हैं? हु इज गोइंग टू टेल मी? रेज योर हैंड। प्लान जिसको कह सकते हैं मैम, उसके और सेकंड स्टेप है ऑब्टेन स्टार्टअप कैपिटल। थर्ड स्टेप है लीगल बिजनेस स्ट्रक्चर। फोर्थ स्टेप है ऑब्टेन EIN, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर। सिक्स है सेटिस्फाई योर बिजनेस लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट। फिर सिक्स है एस्टैब्लिश वेब ब्राउजर और ऑनलाइन प्रेजेंस। सेवेंथ है डेवलप बिजनेस कोलेट्रॉल। 8 है ओपन अ बैंक अकाउंट और मर्चेंट अकाउंट। लास्ट है फॉलो द गवर्नमेंट रूल। वेरी गुड। अब मतलब जितने भी रूल्स है रिगार्डिंग टू पॉल्यूशन, रिगार्डिंग टू रनिंग द बिजनेस, रिगार्डिंग टू एम्प्लॉयज वेलफेयर, एवरीथिंग नाउ द कंपनी और बिजनेस हैव टू फॉलो। एनीवन हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द पॉइंट? किसी को कुछ डाउट? एनीवन हैव एनी डाउट? Raise your hand. Anyone have any doubt? In any point? Objective, writing the business plan में किसी को doubt? Yes, Varsha.
ऑब्जेक्टिव्स का एक बार फिर से कि आप अपने बिजनेस का ग्रोथ कैसे करोगे, ठीक है, आपके बिजनेस का गोल क्या है, रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे लोगे, ठीक है, आपकी कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, बेसिक वर्क क्या है, ठीक है, तो इन सब चीजों को बेसिकली हम ऑब्जेक्टिव्स में देखेंगे। क्लियर हो गया वर्षा? यस मैम। ओके, क्वेश्चन दे रहे हैं।